अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टूडेंट लाउंज। एक ऐसा शो जहाँ पे आईयूबीएम के स्टूडेंट्स आते हैं और अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, अपनी स्टोरीज बताते हैं, अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, करियर में क्या करना चाहते हैं। हम उनसे बातें करते हैं और उनका और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एज अ यूनिवर्सिटी, एज अ मैनेजमेंट हम कोशिश ये करते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है जेंजियर्स के, वो जाने बेसिकली। तो टुडे विद अस इज फातिमा जाहिद. Fatma Zahid is a BBA marketing. No, No, no. no. I am Economics, Law and International Relations. तो ELIR. जो इन्होंने कहा एग्जैक्टली वही कर रही हैं. किसी को आज तक समझ नहीं आया कि मैं कर क्या रही हूँ. ओके, सो फातिमा, मेरा पहला सवाल जो हर स्टूडेंट से होता है वो आपसे भी यही है कि हु इज़ फातिमा, व्हाट इज़ फातिमा एंड व्हाई इज़ फातिमा? Oh, that is very scary to start with. But to begin with, who is Fatma? वैसे तो I think कि to define is to limit. Okay. लेकिन अगर फिर भी define करना हो तो Fatma is currently a last semester a student of Economics, Law and IR. She is extremely ambitious. She would want to be doing everything all at once and extremely curious. कि बस want to find everything out all at the same time. हर जगह कुछ ना कुछ मैं कर रही होती हूँ हर वक्त. आई एम अनएम्प्लॉयड, लेकिन मैं अपने एम्प्लॉयड दोस्तों से ज़्यादा बिजी होती हूँ बिकॉज आई हैव टेकन अप एवरी टॉकिंग अबाउट व्हाई इज़ फातिमा, बेसिकली द पर्पस ऑफ फातिमा. आई थिंक उसको डिस्क्राइब करने के लिए आई हैव दिस author that I really love, Emily Dickinson, and उसने कहा था कि I am out with lanterns looking for myself. Okay. So I think that really depicts my purpose as well. कि Fatma is just in a search for herself, for meaning, for opportunities, and just like trying to find a better version of Fatma every day. मैं चाहती हूँ कि मेरा purpose ये है कि आज मैं आपके साथ बैठी हूँ, कल अगर मैं आपके साथ बैठती हूँ तो tomorrow's Fatma should be better than today's Fatma in every way. And then again, I think हम सबका पर्पस यही होना चाहिए कि क्योंकि इफ़ यू लुक एट द यूनिवर्स इट्स सो वास्ट, राइट. हम कुछ भी नहीं है, वो जस्ट लाइक अ टाइनी स्पेक इन दिस यूनिवर्स. एंड हाँ, तो मेरा पर्पस यही है कि when I leave this universe, years later I leave a mark. Okay. Something that is there to remind the world that there was a Fatma and she left something behind. What is Fatma? तो I don't know. मैं तो कहूँगी पता नहीं, Fatma is a paradox. Okay. Because I think I'm very complex as a person, yet very simple as well. Yeah, how does it work? Because it's a paradox. You just talk about brand managers अक्सर कहते हैं हमें ट्रेडिशनल चाहिए चीज़ लेकिन वो डिफरेंट भी हो, तो हाउ ये दोनों वर्क कैसे करती है मुझे बताओ. I think I'm complex in a sense कि बहुत existentialism है मेरे अंदर कि my thoughts are very intricate, they're very complex, the way I perceive things is very complex. But if you look at me as a whole, so I am a very simple person. What matters to me is my friends, my family, just being surrounded by love and warmth, and just like accomplishing the goals that I want. तो थोड़ा paradoxical है, but okay. So you mentioned in Why is Fatma that a line from a book, right? Yeah. So do you believe कि जो books में line होती हैं can be true or can be workable या inspiration or something? Okay, so I am somebody who's literally grown up reading. मैं सिर्फ बोल नहीं रही कि मतलब I read, I live for reading. आप मुझे कहीं भी मैं आपको मिलूँगी कि I won't be using my phone or anything. I always have a book with me. ठीक है. और when I say I read books, तो सब कहते हैं कि ओ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लो या मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लो. मैं नहीं पढ़ती वो सब कुछ. आई रीड बिकॉज ज़िंदगी में हम वैसे इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, सब कर रहे हैं. आई वॉन्ट एन एस्केप. I want to read fantasy. I want to read writers that I can relate to. But do you believe in it? Oh, fully. Okay. I think the only way to escape the realities of life is to believe in the fantasy थोड़ी भी, ठीक है. तो अगर for example मैं Dostoevsky पढ़ रही हूँ, I think there's always some extent of reality in literature. जो Dostoevsky लिख रहा है या जो काफ्का लिख रहा है या जो सिल्विया प्लैथ लिख रही है, जो भी लिख रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से लिख रहे हैं. कोई अगर J.K. Rowling की वो फैंटेसी वाली स्टोरी भी हैरी पॉटर की, उसके अंदर भी कहीं there is an element of reality and a truth about love and relationships and how the universe works. So I fully believe in that, and I think it's very important to keep believing in some sort of magic to stay alive. Okay. So, Fatma, why IUBM?
बेसिकली आई वॉज मेंट टू बी गोइंग टू कैनेडा. ओके. ठीक है, मैं हूँ लाहौर से, और अगर आप मुझसे 5 साल पहले पूछते किसी भी कराची की यूनिवर्सिटी का, तो मुझे तो पता भी नहीं थे नाम. Okay. आई डिड नॉट नो दिस प्लेस एग्जिस्ट. ठीक है. आई वॉज गोइंग टू कैनेडा एंड देन कोविड हैपेंड, एंड एट द सेम टाइम वी ऑल्सो मूव टू कराची. Okay. आई हैड ऑलरेडी टेकन अ गैप ईयर, तो आई वॉज लाइक कि आई एम समबडी हु नीड्स टू बी डूइंग समथिंग. तो मैंने कहा मुझे तो अब यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी है बस. सो आई मेड अ फ्रेंड हेयर, धनक, शी इज़ ऑल्सो हेयर. मैं उससे मिली थी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड शी वॉज लाइक आई एम ऑल्सो अप्लाइंग टू IOBM, तो तुम वहाँ भी कर दो. ठीक है. मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं भी कर देती हूँ. फिर मैंने कर दिया. ठीक है. और मेरे पास उस टाइम भी होप था कि ओ आई जस्ट गो टू कैनेडा, तो मैं ऐसे अभी अप्लाई कर रही हूँ. बट देन इवेंचुअली व्हाटएवर लास्ट प्लान इज, तो वो हो गया. ओके. And नहीं now- तो कुछ रिसर्च की जब उसने कहा कि IUBM में अप्लाई कर दो या समथिंग, तुमने डिसाइड किया मैं देखूँ तो जरा IUBM है क्या क्या नहीं है. हाँ, मैं रिसर्च की थी. ठीक है. मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ का देखा. अब मेरा ये सारा जो एसेंशली गोल था वो ये नहीं था कि मुझे इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में जाना है. गोल ये था कि मुझे एक्चुअली पढ़ना क्या है. Okay. इट इज़ अ डिग्री दैट मैटर्स टू मी. ठीक है. एंड आई लाइक आई सेड आई एम समबडी वेरी क्यूरियस, सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई वांट टू लर्न अबाउट. अब अगर मैं एक डिग्री कर लूँ जो कि सिर्फ इकोनॉमिक्स है, ठीक तो है. दैट वुड नॉट सफाइस. वो ठीक है. मेरी वो नॉलेज की थर्स्ट को वो नहीं करता. तो आई फाउंड दिस डिग्री व्हिच इज इकोनॉमिक्स, लॉ एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. इट्स लाइक अ plethora of different things, right? And I was like, that is great. That leaves a lot of opportunities open for me. I could be learning so many things of different aspects. तो ये डिग्री मुझे कहीं और मिल नहीं रही है, तो this is great. तो that was essentially the main reason I chose Okay. IOBM. ओके. तो why you wanna do this specific degree? कहीं से इंटरेस्ट हुआ या क्या हुआ? अच्छा, so उसकी बैक स्टोरी ये है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा कोई इकोनॉमिक्स से देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद इकोनॉमिक्स ऑल माय लाइफ. मैंने कभी नहीं पढ़ा ना. ओ लेवल्स में आई वाज अ साइंस स्टूडेंट. ए लेवल्स में आई हैड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, लॉ, इंग्लिश लैंग्वेज, ऑल ऑफ दैट. बेसिकली सब पढ़ कर आई हूँ मैं. बट इकोनॉमिक्स नेवर. दिस डिग्री आई चोज बिकॉज उसमें लॉ था और उसमें IR था, ओके. और दोनों में बहुत इंटरेस्टेड हूँ. law is something that has always fascinated me. The only problem with law has been कि यहाँ के पाकिस्तान के जो तो why courts not हैं- LLB? हाँ, I just don't want to go for LLB in Pakistan. I've Okay. seen so many teachers of mine teaching in schools just because Pakistan के courts are not really good enough for women to be at. और ऊपर से I think I'm more inclined towards the corporate side of law. तो वो डिग्री करके मैं क्या करूँ? This degree is more relevant to it. The courses are perfectly designed उस तरह से. मैं नोट किया अक्सर लोग क्या करते हैं कि BA करते हैं या BCom करते हैं देन दे डू LLB. तो ऐसा कुछ आइडिया नहीं आया दिमाग में कि मैं एक काम करती हूँ कि मैं एक छोटी डिग्री कर लेती हूँ पहले 2 साल की या जो भी है, उसके बाद आई कैन परसू LLB बेशक बाहर से, नॉट यहाँ से. ऐसा कुछ नहीं आया दिमाग में कभी भी नहीं या किसी ने बताया नहीं? नहीं दिमाग में नहीं आया. एक्चुअली मुझे जाना था पहले LLB के लिए, लेकिन फिर आई थॉट अबाउट द प्रैक्टिकलिटीज ऑफ इट के अगर जब मैं नॉट हियर आई एम टॉकिंग इन जनरल टर्म्स. देखो LLB करके तुम कहीं भी जा सकती हो, कहीं भी कर सकती हो एज फार यू टेक देयर लाइसेंस एंड एवरीथिंग, राइट? एग्जाम पास करे. तो मैं वो समझना चाह रहा हूँ कि if you already wanted to pursue law but now you're doing a law, a very small part of it, right? yeah. So why there is a change? Why you want to do economics भी और क्या है IRB? ठीक है, जब इंटरेस्ट लॉ में है तो because this does not limit me. ठीक है. जब मैं कनाडा के लिए मैंने अप्लाई किया था तो वहाँ पे मैंने LLB के लिए वो वाली ठीक डिग्री है, के हाँ, लिए अप्लाई ठीक है. किया था. अभी इधर दिस डज नॉट लिमिट मी. पाकिस्तान है, यू नो हाउ द मार्केट इज़, यू नो कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपकी एक नीश होनी चाहिए. यू हैव टू बी गुड एट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्चुअली मेक इट राइट. तो इकोनॉमिक्स से ये है कि अगर अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं डिग्री ख़त्म करती हूँ 4 साल बाद मुझे लगता है कि ओ मुझे तो बैंकिंग में जाना है, दैट लीव्स द डोर ओपन Okay. फॉर मी. मैं सोचूं कि ओ मुझे CSS करना है, IR leaves the door open for ठीक me. है. मैं कहूँ कि अच्छा मुझे कॉर्पोरेट लॉ की तरफ जाना, दैट लीव्स द डोर ओपन फॉर मी. सो देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट रिमेन ओपन. So Fatma, don't you think it's you are playing safe के चले अगर मुझे लॉ नहीं कर पाई तो मैं एटलीस्ट IR में कुछ कर लूँगी, CSS कर सकूँगी. चले अगर ऐसे अगर वो वाला प्लान नहीं हुआ तो मैं इकोनॉमिक्स में कुछ कर लूँगी. तो डोंट यू थिंक यू प्लेइंग थोड़ा सा ये बिकॉज आई एम टेकिंग माई एग्जाम्पल. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू मीडिया. मैंने कुछ और सोचा ही नहीं कभी कि अगर मीडिया नहीं कर पाया तो मैं क्या करूँगा, राइट? तो what about that? What do you think about that? आई थिंक आई एम मच ऑफ अ रियलिस्ट. ठीक है. तो रियलिटी के साथ रहना, आई ठीक है. लाइक टू स्टिक टू रियलिटी. और आई थिंक कि कंसिडरिंग, जैसे मैंने बोला है, कंसिडरिंग द मार्केट एंड कंसिडरिंग द ऑप्शंस दैट द मार्केट हैज़, इट इज़ बेटर टू बी सेफ.
ठीक है आई एम नॉट मच ऑफ अ रिस्क टेकर, इसीलिए अभी तक मैंने अपना कोई, आई डू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़, पर इसीलिए प्रॉब्लम अभी तक अपना कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट नहीं किया, ठीक है which is something I like to change about myself. But I like to stick to a plan. I like to have some certainty in life कि ये plan है और ये ठीक इससे है। workout ये हो सकता है. How does it work? I don't get it. कहीं पे you are like very ambitious, where you wanna do everything, and कहीं पे you are very thinking about reality. अच्छा ये नहीं, थोड़ा डरी भी हो, थोड़ी सी excited भी हो, थोड़ी सी वो भी, तो मुझे ऐसा लग रहा है. Is it? Am I right or wrong? नहीं, you're completely right. Because ambitious I've always been. ठीक है. ठीक है. But again, when life happens, then you realize कि eventually things cannot just go according to plan. You That's can have so a plan true. A, you can have a plan B, you can have a plan C, ठीक but है. eventually वही होगा जो अल्लाह ताला चाहते हैं. I never ऐसे ही. knew I'll be sitting here with you ठीक है. 5 years ago, right? ठीक है. तो उसमें यही है कि आप थोड़ा सा डर जाते हैं कि when things don't go the way you've planned and you try to be more careful. So that is what I'm trying to do. Okay. So फातिमा फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाती है आईयूबी में एडमिशन लेने के बाद, तो व्हाट वाज फातिमा's मतलब फातिमा को ये लगा कि मैं ये कहाँ आ गई, या उसको ये लगा कि नहीं दिस प्लेस सीम्स गुड या समथिंग, व्हाट वाज द स्टोरी? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट समबडी हु क्राइज अ लॉट, लेकिन मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में घर जाके रोज रोती थी. व्हाट? बिकॉज क्या करते हो, नहीं बुली कर रहा नहीं था, नहीं वो नहीं तंग कर नहीं रहा नहीं था? नहीं, बिकॉज मैं आई थी लाहौर से, ठीक है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वहाँ के जो स्कूल्स हैं एंड एवरीथिंग, इट्स वेरी डिफरेंट. ठीक है, Define different. डिफरेंट इन द सेंस के you just feel like कि बहुत लिमिटेड तरह के लोग होते हैं. कराची में it's very like multicultural. There's ठीक है. a lot of different kind of people, different like castes, different backgrounds, different true. हर जगह से लोग आए होते हर हैं. तरह के लोग मिल रहे हैं हर आपको. तरह के लोग आपको मिल रहे होते हैं. और मैं हमेशा से, मैं LGS में होती थी, वहाँ पे I was very limited to a certain type of burger kids, and I was like ये मैं कहाँ आ गई. और फिर मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इधर आना है, तो मैं थोड़ी वो भी थी कि oh I'm not going to make any friends, I'm not going to do anything, although that is Why very is it? unlike me. Why this problem is with every kid I'm talking? मतलब वो क्या ना, मैं प्रॉब्लम है, दोस्त नहीं बना पाऊंगी या समथिंग? नहीं, मुझे पता था मैं दोस्त बना लूंगी. वो मेरे लिए कभी मसला हुआ ही नहीं है. आई मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. मेरा ठीक है. सर्कल इतना बड़ा है, मैं भी भूल जाती हूँ कौन ठीक है, कौन है हो गया. उसमें. लेकिन जब मैं इधर आई थी तब आई वाज अ लिटिल स्केप्टिकल ठीक है. कि वो होता है ना कि it's something that you never thought of and it's happening, so you were like let's just go with the flow. ठीक है. तो आई एम समबडी, मैं बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर्स में होती हूँ. अभी भी मैं आ गई हूँ बहुत चीज़ों के अंदर, लेकिन उस टाइम पे मैंने सोचा मुझे इनसे कुछ नहीं करना, मैं पढ़ाई पे फोकस करूँगी, ठीक मैं है. डिग्री खत्म करूँगी, 4 साल गुजर जाएंगे. सो दैट वाज द फातिमा दैट केम हियर. ठीक बट है. इवेंचुअली आई मेट सच अमेजिंग पीपल. मैंने SHRS ज्वाइन कर ली, इसमें मुझे इतने अच्छे लोग मिल गए. मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कब दैट माइंडसेट सॉर्ट ऑफ शिफ्टेड एंड आई वाज जस्ट तो why did you cry घर जाके, ये बताएं पहले तो. इसीलिए ना कि मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं क्या कर रही हूँ ये. आई जस्ट पहले तो मुझे लगा कि मुझे अपने टाइप के लोग मिलेंगे ही नहीं. ठीक है. मैं कहाँ, मैं काफका की बातें करना चाहती हूँ. Do you consider yourself burger? Oh, that is, पता नहीं, I don't know. नहीं, you said कि अभी वो एक certain type of लोग मेरे जो आप वो लाहौर के अंदर बर्गर बच्चे ये वो something right? तो वो उस पे do you consider जब मैं yourself आई burger? थी, yes. Okay. अब I am a true कराची आई. अच्छा, you're saying तो कि बर्गर और कराची लाइट इज अ डिफरेंट थिंग. Yes. यहाँ बर्गर नहीं मिले आपको? नहीं, नॉट एज सच. Okay. अगर आप डिफरेंस देखें ना, तो मुझे लगता है लाहौर इस्लामाबाद में बहुत बर्गर बच्चे होते हैं. Okay. एंड दे आर नॉट तो एक्सपोज्ड यहाँ के टू. बर्गर क्या है वो आपके लिए, अगर आपको लगे, अगर फॉर एग्जांपल आपको लगे यार ये बड़ा बर्गर बच्चा है फॉर एग्जांपल? मुझे यहाँ पे इस तरह के लोग मिले ही नहीं है. मुझे लोग मिले हैं who have been exposed to the practicalities of life. डिफाइन बर्गर वैसे आप. व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ बर्गर? एवरीबॉडी जिसको बर्गर बनना है या वो है, तो दिस इज द डेफिनेशन. फातिमा इस पता है, चलो. पता नहीं, आई थिंक जस्ट नहीं लाइक नहीं, you know कि उस स्कूल के अंदर कि these are बर्गर बच्चे हैं, तो वो डिफाइन दैट ट्रेड्स क्या होने चाहिए. कि बस लाइक वेरी डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स फॉर एवरीथिंग. ठीक है. कि बस तो दैट्स अ मम्मी एक डैडी राइट? एक बबल के अंदर रहते हैं वो, कि ठीक है. आपका ड्राइवर आपको छोड़ रहा है और ठीक वो है. जा रहा है. आपने Okay. कभी किसी बस में ट्रैवल नहीं किया, Okay, आपने ठीक है. कभी उर्दू में आपको बात कर लें, तो दैट ठीक इज़ अ है. प्रॉब्लम. ओके मुझे उर्दू तो मुझे सही से बोलनी आती नहीं है. फिर अगर मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने देखा कि एवरीबडी इज़ वर्किंग, हाँ. इवन इन लाइक द फर्स्ट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटीज. और That's- वहाँ yeah. पे ऐसा कोई कल्चर नहीं था. ठीक है. वहाँ तो होता है कि आपने ग्रेजुएशन कर ली तो फिर जॉब करेंगे. नन ऑफ माई फ्रेंड्स दे वर वर्किंग एज ठीक सच. है. मैंने कभी देखा ही नहीं था. यार आई केम एंड आई एम लाइक व्हाई आर यू गाइस वर्किंग इन योर फर्स्ट सेमेस्टर? कोई फ्रीलांस कर रहा है, कोई प्रॉपर जॉब कर रहा है. लाइक हाँ. क्यों कर रहे हो तुम लोग? देर लाइक दिस इज हाउ वी आर सपोज्ड टू बी. मैंने कहा नाइस, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है. तो दैट वाज रियली रिफ्रेशिंग ऑनेस्टली. Okay. मतलब वो भी अच्छा है, लेकिन दिस आई फील लाइक इज बेटर. तो व्हेन यू केम हियर और लाहौर से यहाँ पे और कराची, तो डू यू थिंक
Now it's been like 4 years, 5 years. Almost 5. 5 years. तो कराची मैंने नोट किया है, कराची शुरू में लोगों को बुरा लगता है, पर वंस यू गेट इनटू इट यू लाइक कि बस अब कराची में रहना है या समथिंग, कुछ इस तरह हुआ या यू मिस योर city like anything? I used to think actually I was born in Karachi. Okay. My maternal side was from Karachi and my father was from Punjab, right? तो हम लाहौर में रहते थे. I was raised there for all my life. और मुझे लगा था जब मैं छोड़ी थी कि मुझे बहुत मसला होगा. But when I came here, I think Karachi sort of embraced me. Like my mother was from Karachi and all her life I heard her talking about Karachi and how वो कभी लाहौर उनको पसंद नहीं आया, उनका दिल नहीं लगा लाहौर में. और मैं कहती थी ऐसी भी क्या अटैचमेंट है एक शहर से आपको कि मतलब आपका दिल नहीं लग रहा. Now I understand. अभी मैं एक हफ्ते के लिए लाहौर गई हुई थी and I was like I want to go back to Karachi even though those were my people. लेकिन वो I think एक चीज़ होती है ना कि home is not just like bricks and mortar. It is a sense of belonging. And I think this city has the ability to just make you feel at home. इतने सारे बैकग्राउंड से इतने डाइवर्स लोग आए हुए हैं. Everybody has found a home in Karachi and for some reason आपको बस लगता है कि you belong here. Okay. Do you like Karachi now? I love Karachi. Okay. I've always loved Karachi. You want to stay here in Karachi now? क्या after graduation you're gonna go back to Lahore? I don't want to go back to Lahore. Oh, you don't want to go? I hope my father is listening to this. Sorry, Lahore के लोग and दोस्त इनके she's not coming I have back. no shame in admitting that. Okay. I love the city. I love how much it's given to me. I love how I've transformed into the person here. जो मेरी पिछले 4 साल में evolution हुई है as a person, वो कराची की वजह से हुई और यहाँ के लोगों की वजह से हुई है. तो I cannot put that all in vain and say मुझे तो लाहौर बहुत ज़्यादा पसंद है just because मैं लोगों को please करना है. नहीं, I love Karachi. Okay. So फातिमा जो है फर्स्ट सेमेस्टर गुजार लेती है और उसको फिर 2 साल हो जाते हैं, मतलब वो आ जाती है 4th सेमेस्टर, 5th में आ जाती है फॉर एग्जांपल. तो व्हाट डिफरेंस यू सॉ इन यू कि फर्स्ट सेमेस्टर की फातिमा में और 2 साल गुजारने के बाद फातिमा यूनिवर्सिटी के अंदर क्या फ़र्क दिखा उसको अपने अंदर? I think मैंने अपने second year में ही SHRS join की थी. तो Fatma started to feel like herself again. Okay. Because Fatma has always been somebody who's doing debates, who's doing theatre, who's writing poetry, who's literally doing everything. मेरी आवाज़ बहुत बुरी है लेकिन मैंने गाना भी गाया हुआ है, सब किया हुआ है. तो एकदम से मुझे लगा कि she has a sense of purpose again. Although it's a society और फिर सब मुझे ये भी कहते हैं कि ये तो मैं कोई पैसे थोड़ी मिल रहा है करने के, लेकिन the sense of purpose that I found again, that was amazing. कि okay, now I'm going to conferences, now I'm networking with people, I'm finding people that are, क्योंकि एक society में usually generally like-minded लोग ही आते हैं, तो I'm finding people who think like me, who perceive things the way I do, that was really nice. I think वो वाला time मेरे लिए it was a peak time because it was like finding myself again. ठीक है. So you're what in SHRS right now? General Secretary. General Secretary. And last you were? I was Director Public Relations. ठीक है. So did not apply for presidentship या नहीं? नहीं, मैंने नहीं किया. Why not? Well, you look like a very extroverted. You want to do everything. Why did you not apply? I just felt like I would be in my last year. Although पता है ये मेरा misconception था कि मेरे पास last year होगा तो already बहुत added responsibility होगी. Being in the top 4 itself is the same as आप president की job कर रहे हो या आप general secretary की job कर रहे हो. It's the equal amount of opportunity. But I don't know मैंने क्यों नहीं किया. Okay. तो फातिमा last semester में आ जाती है अपने. अभी आने वाली हूँ. Sorry, last year में आ जाती है 7th आपने गुजार लिया. तो ऐसी कोई चीज़ जो IUBM के टीचर्स में आपको पढ़ाई हो और आपको फॉर एग्जांपल आप कोई SHRS का कोई इवेंट ही आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो फॉर एग्जांपल लेट्स से, या रियल लाइफ में कोई आपने इंटर्नशिप की हो या आपने कुछ ऐसे किया हो और वो उनकी कोई ना कोई वो बात रह गई हो याद और फिर वो कहीं ना कहीं क्लिक होती है, अच्छा उस टीचर ने ये कहा था तो मुझे अब देखो होते हुए नज़र आ रहा है या समथिंग, तो ऐसा कुछ है? Not really, but अगर in general बात की जाए ना कि if I've met a teacher here who's inspired me, तो वो that would be Sir Hassan Habib. Okay. He's really inspired me. मेरे उनसे बहुत सारे courses हुए हैं and in every course, every year, I've just like learned so much from him. और वो वाला नहीं कि आप course book से चीज़ें उनसे सीख रहे हो. He's been ambassador in so many countries. He has so many stories to tell. तो आप उनको देखते हो, आप inspire होते हो कि this is how I want to be 40 years later. कि I'd be sitting with somebody and I can tell कि I've lived my life and I've lived it this way. तो there's like so much exposure you get from him. फिर इसी तरह असद शहजाद हैं. Sir असद शहजाद, he's amazing. मेरा उनसे सिर्फ एक कोर्स था हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं. मैंने कार्ल मार्क्स पहले पढ़ा हुआ है, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन the way he perceives all of those things and the way he has the ability to put across them, अगर आप उनके साथ conversation करो तो
there's so much that you learn. ठीक तो है वो I think that also really changed the way I look at things and like philosophically जिस तरह मैं चीज़ों को देखती हूँ. तो जब ग्रेजुएट हो जाओगी तो क्या मिस करोगी सबसे ज़्यादा? कोई ऐसी मेमोरी है तुम्हें जो हमेशा याद रहती कि यार दिस इज़ समथिंग वी हैव डन आई एम सो प्राउड ऑफ, या मे बी समथिंग के आई एम सो हैप्पी राइट नाउ, या समथिंग ऐसी चीज़ याद है? I think सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि I'll miss SHRS because Okay. it's become such an integral part of my life ठीक कि है. मेरा पूरा WhatsApp is all SHRS के ठीक है. groups, everything is SHRS. Okay. तो एकदम से वो चला जाएगा तो वो एक void होगी definitely. Then definitely the fact that I am somebody कि अगर मैं बहुत sad भी उठी हूँ ना और मैं university आ रही हूँ सुबह and I'm just like sitting at junction and having chai with my friends तो मैं एकदम से ठीक हो जाऊँगी. Okay. So I'll miss that feeling because obviously once you start your work and everything, तो you don't get that kind of ऐसे ही है, friendship, ऐसे ही right? है, कि आप ऐसे ही है. junction में बैठ के चाय पी रहे हो और सब ठीक हो गया है. I'll miss that. I remember एक इवेंट हुआ था शेल का विमेंस डे का, एंड यू आस्क अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई रियली वांट यू टू रिपीट दैट क्वेश्चन ताकि वी कैन टॉक अबाउट इट. व्हाट वाज द क्वेश्चन? Yeah, so I think उनकी legal head was there और speaker session था. I'm really glad you remember that. My question was ये because she seemed like somebody who had a balance between like career and then personal life because she'd been married और वो legal वाली field से ही थी. तो I was sort of intrigued कि हम इस age पे हैं जहाँ पे we have questions like, oh, what are your plans for getting married? And then we have so many friends who are getting married in the last semester or something. तो my question, and as for somebody, थोड़ी पर्सनल बात है लेकिन आई एम समबडी हु डज नॉट बिलीव इन गेटिंग मैरिड वेरी अर्ली. Okay. ठीक है, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि इफ़ आई वांट टू अचीव सर्टेन थिंग्स इन माई लाइफ पहले, तो द प्रॉब्लम इज़ कि अगर हम रियलिस्टिक होकर देखें तो वुमेन हैव दिस प्रॉब्लम कि वी डोंट हैव दैट लिबर्टी दैट मैन हैव. हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक का प्रॉब्लम होता है. तो आई वांटेड टू आस्क हर कि हाउ डू वुमेन सॉर्ट ऑफ बैलेंस दैट आउट. वो क्या करें कि वो अपना करियर भी वो कहें कि मुझे 30 साल तक मैं ये चीज़ें अचीव कर लूँ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस Yeah. ऑफ फैमिली और किड्स, और उनको ये भी फेयर ना हो कि ओ आर बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग. बिकॉज रियलिस्टिकली स्पीकिंग any woman would want to have a family in their life in the That's long true. term, but if she also wants a career तो फिर वो क्या करे? Okay. So that was my question. So did you got the response you wanted, या did you change your perspective, या कोई इस तरह का जो उन्होंने जवाब दिया था? I remember. What do you think? Her answer came it was very unexpected. ठीक है? But it was very, realist. It was it was the answer that I needed. Yeah. It did give me the answer that I wanted. उन्होंने मुझे बोला कि अनरियलिस्टिक है कि आपको कि बैलेंस मेंटेन हो सकता है एज अ वुमन. वी डोंट हैव दैट लिबर्टी. ठीक है. आपको रियलिस्ट होना पड़ेगा. थोड़ा टाइम आएगा कि आपको गिव अप करनी पड़ेगी एक हाँ, चीज़, that's और वो true. कभी भी 50-50 नहीं होता फॉर अ वुमन. तो I realized that. ठीक है. So what's the origin of this? Like, I know you don't want to get married early, you want to do your career or something, but thinking of this sort right now, because I know a lot of people, maybe they're not thinking, they must be thinking, ये जब टाइम आएगा जब देख लेंगे. But you want to be know everything पहले से ही. तो are you शुरू से ही ऐसे कि for example कि you wanna know everything, या you wanna know what you getting into, या you यहाँ कैसा हुआ है, या जब बड़ी हुई तो ऐसा हुआ है? What do you think? No, I've always been like that. Okay. I always want to know what I'm getting into. Okay. Again, I think ये तो बड़ी एक मेजर रियलिटी आपकी ज़िंदगी की. एंड इफ वुमेन आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस लाइक दैट, आई थिंक दैट इज़ अ प्रॉब्लम. आप 21st सेंचुरी में हो, आपके पास सामने अपॉर्चुनिटी, आपके सामने ऐसे लोग हैं हु लिव दैट, हु एक्सपीरियंस दैट, तो आस्क देम. इससे बेहतर कि आप हर चीज़ एक लक पे रखो हाँ. कि हो जाएगा तो देख लेंगे कि क्या होगा. व्हाट इफ़ इट गोज़ रॉन्ग? व्हाट इफ़ यू हैव समबडी हु कैन गिव यू अ वेरी गुड एडवाइस? आप उनसे पूछो. व्हाट इफ़ दे गिव यू एन आंसर दैट रियली हेल्प्स यू, और उससे आपको ठीक है. थोड़ा, ऑब्वियसली आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा लेकिन वो आपको एक डायरेक्शन देगा. मैं I've always been somebody, मैं तो पहले कहती थी कि oh I do not believe in the institution of marriage. ठीक है. ये क्या है? ठीक है. ठीक है. फिर I grew up and I realized कि no, this is a reality of life. This is something that your religion also wants. This is you need companionship in your life. तो पर फिर आप उसको कैसे मैनेज करोगे अगर आपको अपना करियर भी करना है? तो फिर मैं तो कंफ्यूज थी. अब at my house I only have my dad, who is a man, and then I have my brother, who's also a man. ठीक है. So I lack that sort of female perspective on this. Okay. So I found somebody there जिसने ये सब lived experience किया हुआ, तो मैंने कहा sure, why not ask her? ठीक है. मैं पूछ लेती हूँ जो भी हो. Okay. ठीक है. So if I call your mother, you have a mother? She passed away. Okay. I'm Yeah. so sorry. No, I it's did not okay. know. It's okay. So when did she pass away, if I ask? It's been almost 6 years, 5-6 6 years. years. Okay, Yes. so- Before I shifted to Karachi. It's okay. So let's assume let's go back 6 years ago, and I called your mother and asked, how's Fatma as a kid? So what do you think what she gonna answer? I think
my mother has only known me as a kid because वो जो आपके हाँ, grown up years हैं वो yeah. तो उन्होंने देखे ही नहीं है, but she would say कि फातिमा is extremely responsible. वो Okay. proper elder child, no जिद. ठीक है. मुझे नहीं लगता मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स से कोई जिद की होगी या मैं कोई भी problematic child हुई होंगी. Even as a toddler, Okay. I was a very calm child. कि मैं मेरी दादों के पास मुझे लुटा दो, मैं पूरा दिन लेटी रहूंगी आराम से, मैं नहीं रहूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी. तभी I get really annoyed at kids these days. I'm like कि क्या मसला है इनको. लेकिन I've always been very responsible. Very responsible. मुझे पता था कि ये मेरे academics हैं, ये मेरा extra curricular है, and so Fatima was always very responsible. I'm pretty sure कि my mother would always say that. Okay. I think way too responsible to an extent कि आपको एक बच्चे की फिर वो होती नहीं है कि उनको आपको पता होता है कि सब कुछ मैनेज कर लेगा. ठीक है. That kind of a kid. और if I call your brother and ask कि फातिमा कैसी, वो क्या कहेगा, वो क्या जवाब देगा? The way I perceive it, I would think कि we both see each other as a mother figure in our lives. Okay. Because technically we've both raised each other. Okay. जो आपके formative years होते हैं जिसमें आप दोनों बड़े और होते हैं, you were there. तो उसमें we were there for each other. Okay. तो it's always been us against the world. ठीक है. कोई भी होगा, no matter who it is, we will stand for each other. ठीक है. And I like to believe कि वो मेरे बारे में ये सोचता हो or look up to me as like a figurehead in that sense. Well, I just think कि मेरे भाई को ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा I take these things very seriously. My extracurriculars वगैरह वो बहुत practical है. वो कहते हैं job करो, you earn your money and you get a job and you do that. ठीक है. तो वो मुझे कहता है कि क्या तुम स्टूडेंट सोसाइटीज़ में हो और तुम्हें लाइक ये तो क्या हरकत है, ये तुम्हें पैसे भी नहीं मिल रहे इसके. बट नहीं, आई थिंक वी जस्ट लाइक लव ईच अदर अ लॉट. माई ब्रदर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ एंड आई होप टू बिलीव कि मैं भी हूँ उसके लिए. You say hope to believe. हाँ, मैं पता नहीं, अब वो 2 साल हो गए उससे मिले हुए. What's his name? समी. समी, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ फातिमा को मैसेज करके बता दें. ओके, सो फातिमा कभी लड़ाई हुई है यहाँ पे? यहाँ पे IOBM में किस तरह की लड़ाई? लाइक एनीथिंग, कैट फाइट टाइप? एनीथिंग. नहीं, आई थिंक मैं इस सोसाइटी में होते हुए भी नहीं हुई कि यार फातिमा इतनी वो बॉसी है या हर वक्त काम देती रहती हैं या ये नहीं, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं. अच्छा, मैं आपको बात बताऊँ, मैं बिफोर ये मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है. अगर आप मेरे O levels वाले दोस्तों से या उससे पहले वाले दोस्तों से पूछे ना, तो मैं वो हेड गर्ल वगैरह होती थी और मैं वो वेरी बॉसी. व्हाई आई एम पॉडकास्टिंग ओनली द ब्राइट स्टूडेंट्स? ऐसा क्यों है मेरे साथ? और वो भाई प्लीज मुझे ऐसे स्टूडेंट्स भी आ जाए जो थोड़े हो मसले मसाइल वाले हो. सॉरी कट. नहीं, तो ये मसला होता था मेरे अंदर कि आई वाज वेरी बॉसी. मुझे ये होता था कि ओ ये सब कट थ्रोट है, जो मैं चाहती हूँ वो होगा, वो इसी तरह होगा. सही है. ठीक है. फिर आई थिंक आई चेंज अ लॉट एंड आई टोन डाउन एज अ पर्सन. नाउ आई अंडरस्टैंड कि एक तो आई थिंक what really shaped the way I perceive things is my mom passing away. ठीक है, that really changed me as a person, made me more calm, and made me realize कि oh there's more important things in life than just making sure कि oh ये काम सही हो रहा है. सही है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ आप काम कर रहे हो कि maybe that person is also going through something and maybe they cannot deliver the same way that you want it to be. So you always have to perceive things in a way कि आप दूसरे की साइड ऑफ द स्टोरी भी देखो. तो अगर आप अपनी सोसाइटी में, अब मैं ये नहीं कहती कि अभी ये काम करके दो. नहीं, you also have a job, you take your time, you do your work. मेरे पास भी काम है, हम दोनों अपना टाइम लेंगे, हम लोग अपना काम करेंगे. डिलीवर हो गया तो ग्रेट, नहीं हुआ तो फिर क्या कर सकते हैं. ठीक है. लड़ाई नहीं करती मैं. अच्छा, लड़ाई नहीं करते आप? नहीं, क्यों एनर्जी वेस्ट करूं मैं अपनी किसी के. अगर ये लड़ाई करती हैं, कोई जानता है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें. अच्छा, अब एज्यूम करते हैं कि IUBM की तुम्हारी लाइफ से निकाल देते हैं, तो क्या मिस कर रही हो? सबसे ज़्यादा आई थिंक द फ्रेंडशिप्स Okay. that I've formed here. I found a lot of, I think I've been acquainted properly with girlhood here. Okay. All my life I was somebody who had a lot of guy friends. I still do. अभी सब हैं, वो लाहौर में मेरे बचपन के दोस्त हैं, सब हैं. यहाँ आके मुझे गर्लहुड वाली वो एक चीज़ मिली है. Okay. ठीक है, दैट सॉर्ट ऑफ लाइक सिस्टरहुड एंड कंपेनियनशिप एंड फीमेल फ्रेंडशिप्स, वो आई थिंक निकल जाएगा मेरी ज़िंदगी में से. और आई थिंक इफ़ यू रिमूव IOBM फ्रॉम लाइफ, तो दे वुड जस्ट बी अ फातिमा स्टैंडिंग 4 years back who was very anxious about things, who did not have any calmness in her. Everything that I've done here, वो मुझे realize नहीं हुआ था in the time, but if I look at it अब end में जाके, तो everything like shaped me into like a calmer, better version of me. Okay. तो वो निकल जाएगा फिर अगर IOBM ना हो. ठीक है. Let's assume कि you need an advice कोई 10 साल बाद and you were in a very confusion state में या something. I hope not. फिर अचानक से याद आता है यार मैंने सर शायन के पॉडकास्ट पे गई थी मैं. I gave an advice to myself.
दो एडवाइस होंगी. आई थिंक द फर्स्ट वन इज़ दैट नेवर रीड योर बुक्स बैकवर्ड्स. जो हो गया ज़िंदगी में वो हो गया. यू डोंट हैव टू लुक बैक. आपने पढ़ लिया, आपने उससे सीख लिया, बस सही है. यू डोंट हैव टू कीप री रीडिंग द सेम पेजेस. जस्ट मूव ऑन एंड कीप गोइंग. एंड सेकेंडली, इट्स नेवर दैट सीरियस. whatever you're doing, आपने अपने लिए जो भी एक लाइफ ट्रेजेक्ट्री सेट की हुई है, यू डोंट रियली हैव टू डू एवरीथिंग. कि अगर आपने सोचा हुआ है कि मुझे 24 पे करियर करना था, मैं 26 पे ये करना था और आपसे नहीं हुआ, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बिकॉज हर किसी की ज़िंदगी अलग होती है एंड That's अल्लाह हैज़ true. डिफरेंट प्लान्स फॉर अस. तो इफ़ यू हैव नॉट अचीव्ड everything that you had planned the way that you had, तो it's not a problem because definitely अल्लाह का उसके अंदर कोई बेहतर मकसद That's होगा. true. इससे मुझे बात याद आ गई. स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं अक्सर, सर हमारे इतने कोर्सेज रह गए, हम टाइम पे ग्रेजुएट नहीं होंगे. मैंने कहा सो व्हाट, क्या होगा उससे, मतलब अगर एक सेमेस्टर ज़्यादा लग जाएगा अगर, तो क्या होगा उससे. कह रहे नहीं सर वो अच्छा नहीं रहता, मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है. मैंने कहा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. लेट मी टेल यू अ स्टोरी. एक बैच ग्रेजुएट हुआ यहाँ से और उसमें एक लड़की ग्रेजुएट नहीं हुई. क्यों? क्योंकि उसका कोर्स का कोई इशू था. तो आई थिंक वो एक सेमेस्टर बाद ग्रेजुएट हुई एंड शी वॉज वेरी डिप्रेस्ड. शी केम टू मी, शिट मेरा टेंशन नहीं लो. इमेजिन उसका जो बैच था, दे ऑल वर फाइंडिंग जॉब्स, दे वर स्ट्रगलिंग, एंड दैट गर्ल गॉट द जॉब उन सबसे पहले जो ग्रेजुएट भी नहीं थी. और नाउ शी इज़ इन वेरी गुड पोजिशन राइट नाउ. एंड उनके अभी भी दोस्त जो हैं सारे, जो पहले उनके एक साल पहले ग्रेजुएट हो गए थे, दे वर स्टिल मैसेजिंग हर कि अच्छा कोई जॉब का बताओ, क्या सीन है वो. द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि मैं बस ग्रेजुएट हो जाऊँ जल्द टाइम पे और मुझे भी जॉब मिल जाएगी. या रेस नहीं है आपकी किसी, मतलब कि कोई रेस नहीं है. क्योंकि वी बिन टू दिस ऑनेस्टली. हमारी तो, आप लोग तो बहुत लकी है, हमारी तो जनरेशन में ये था कि वी हैव टू सपोर्ट आवर फैमिली, वी हैव टू डू इज दिस, हमें जॉब करनी है, वो तो करनी है हर हाल में. हमारे यहाँ क्या होता था, बेचारे जो 4 साल के अंदर ही जॉब करना शुरू कर देते थे, फिर वो पढ़ाई छोड़ देते थे. कि कहते थे वी ऑलरेडी अर्निंग द मनी, वाई वुड वी वेस्ट आवर टाइम. आपकी जनरेशन में ये एक अच्छा है कि काम भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं. हमारे यहाँ बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि हमारे क्या था, पढ़ क्यों रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, राइट. वो मिल रहा है, फिर क्यों पढ़ें, टाइम क्यों ज़ाया करें, हम फुल टाइम यहाँ देते हैं. फिर लॉन्ग रन जाके उनको मसला बनता था. तो आपकी बात से वही मुझे याद आया कि व्हेन यू से कि कोई डू इट ऑन योर पेस एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक आई कैन रिलेट टू इट. Yeah, I think I have a very strong faith in Allah's timing. हाँ, Whatever ऐसा ही है. He has planned for you, आपको समझ नहीं आ रहा होता उसके अंदर क्या रीजनिंग है, लेकिन if you look back तो कोई ना कोई रीजनिंग ज़रूर होती है. He's just like protecting you from something or directing you towards a better है. path. अच्छा, you read a lot of books, so do you believe, you already answered that, did you believe in the words, वो जो सारी चीज़ें हैं. If I ask you a very different question, do you believe in slogans जो companies या कोई भी ऐसा ब्रांड या ऐसी कंपनी या कोई भी ऐसी बुक जिस पे चीज़ें लिखी हो, do you believe in that slogan? Slogans like दाग तो अच्छे होते हैं हाँ, type. anything, या quotes. quote, slogan, anything. Hmm. क्योंकि एक फिल्म मुझे याद आ गई, हैव यू सीन पैसेंजर्स, क्रिस प्रैट्स की और जेनिफर लॉरेंस की, दे स्टक इन अ स्पेसशिप. वो उसको कहती है, नहीं मुझे नहीं याद. अच्छा ओके, देयर इज अ फिल्म, जेनिफर लॉरेंस और क्रिस प्रैट्स होता है उसमें. क्रिस प्रैट्स बिलोंग्स टू वेरी हम्बल फैमिली एंड शी इज़ रिच. तो दोनों एक ट्रिप लेके ना एक दूसरे अर्थ पे जा रहे होते हैं. तो वो उसको कहती है कि तुमने क्या बेचा, देन यू केम हियर. उसने कहा कि मैंने जो कंपनी उसको ये बेचा है कि अगले 30 साल या सारी ज़िंदगी जितना भी काम करूँगा उसको 20% सैलरी मैं इस कंपनी को दूंगा. तो कहती है कि यू गोइंग विद द स्लोगन, जो उसका स्लोगन है. तो कहता है कि स्लोगन ट्रू नहीं हो सकते क्या. तो मेरे उससे दिमाग से बात हुआ है कि व्हेन यू से द वर्ड्स आर ट्रू, जो बुक्स आप रीड करते हो, डू यू बिलीव कि जो कोट्स हैं या समथिंग, डू यू बिलीव इन दैट कि इट्स इज ट्रू और नॉट? Certainly, definitely true. I think a lot of who I am and what my personality is has been derived from those quotes. Okay. And the way these people have thought. अब जैसे मेरी एक कोट है कि मुझे कोई पूछता है कि ओ व्हाट इज़ सक्सेस फॉर यू, ठीक है, तो उसका आंसर आई ऑलवेज रिलेटेड टू समथिंग. वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स हार्वी ही सेड कि आई वांट टू वर्क हार्ड इनफ कि एट अ सर्टेन पॉइंट आई डू नॉट नीड एन इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो हाँ, तो वो मैंने उससे सीखा है. एंड नाउ दैट इज़ अ मोटिव इन माई लाइफ एज वेल. तो आई थिंक द थिंग्स यू वॉच इन ऑल ऑफ दीज स्लोगन्स एंड एवरीथिंग, ऑल ऑफ दीज कोट्स, एवरीथिंग डज रियली इंस्पायर यू इन अ वे. फातिमा ने ग्रेजुएट होकर क्या करना है, फ्यूचर प्लान्स क्या है फातिमा के? Fatma has just decided कि उसने अभी एकदम से मास्टर्स नहीं करना. Okay. She wants to take some time
एक साल के अंदर she wants to discover the practical world ठीक है, and then see what she wants to do आगे. ठीक है. I want to work essentially. Where you want to work? What area or field, Yeah, right? yes. Majorly inclined towards legal because मैंने अपनी Okay. internship भी legal में की थी. I ठीक है. thoroughly enjoyed that. मैं marketing वगैरह में भी कर चुकी हूँ, but just really enjoyed legal. ठीक है. तो I want कि मैं उसी में जाऊँ. Okay, Hmm. okay. So thank you so much, Fatma. It was Thank a you. wonderful talking to you. Really inspiring and everything. I really wish and really want whatever you want to do in your life. करें उसको. Take risk and do it. कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप सक्सेस 10 साल बाद हो या 5 साल बाद हो या एकदम से हो जाए. All you want is experience and you will learn the way you want it. So thank you so much and I wish you all the best. Thank you so much. It was actually great being here, and I love how you guys are, the way you're working with the whole media department this time. I haven't seen things before. The way you're Okay. like innovating and Mm. interacting and engaging everybody. I love that. Thank you for having me. Thank you so much. So guys, this was Fatma Zahid. You heard her story, her thoughts. If you want to be part of this podcast, there is a Google form. उसको फिल कर दें और हमें लगेगा कि आपकी स्टोरी इंस्पायरिंग है, हमें लगता है कि आप इस पर आगे चीज़ें बता सकते हैं, वी विल कॉन्टैक्ट यू. सो अंटिल देन, दिस इज़ योर होस्ट शान हुसैन एंड यू आर वाचिंग स्टूडेंट लाउंज. अल्लाह हाफिज़.